एक बार फिर खून से लाल हो गया कश्मीर का जमीन का टुकड़ा। एक बार फिर आतंक ने छीन ली दर्जनों जिंदगियां और एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है, आखिरकार कब रुकेगा ये खूनी खेल। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में मंगलवार की दोपहर करीब 2:45 पर आतंक का वो मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस नृशंस आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमले के शिकार हुए लोगों में कोलकाता के वैष्णो घाटा के निवासी बितान अधिकारी भी शामिल थे, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ घूमने के लिए कश्मीर गए थे। बितान अधिकारी केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय में अधिकारी थे और हाल ही में अमेरिका से वापस भारत लौटे थे। परिवार के साथ छुट्टी मनाने निकले थे, मगर किसे पता था ये उनकी जिंदगी का आखिरी ट्रिप होगा। राज्य के मंत्री अरूप विश्वास मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर उनके परिवार से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद उन्हें मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि हर संभव उनकी सहायता की जाएगी। ওরা একটা কেস নিয়ে নাজিয়াল হয়ে গেছে। বউয়ের একটু এর জন্য মানসিক একটুখানি এফেক্ট হয়ে গিয়েছিল। ভাই এসেছিল এখানে, বলল তুই ওর মানসিক অবস্থাটা ভালো না, ওকে একটু কাশ্মীর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। তো ও কাশ্মীরে গিয়েছিল। এর আগে আমি সমেত ওরা রাজবাড়িতে গিয়েছিলাম। বলছে পয়লা বৈশাখে কেন আমরা ঘরে খাবো, হ্যাঁ আমরা রাজবাড়িতে গিয়ে খাবো, রাজবাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে এসেছি। তার আগের দিন আমরা নৈহাটি বড় মার কাছে গিয়েছিলাম এবং বলেছিল বর্দা আমরা এলে একটা ভালো ছোট্ট জায়গা একটা সবাই মিলে যাব। ও আমাকে ছেড়ে এখানেও আমাকে বলেছিল যেতে, কিন্তু আমি আর যাইনি, আমি ইচ্ছা করে যাইনি। বলছি তোরা যা, তোরা স্বামী স্ত্রী যাবি, তোরা আনন্দ কর, কিন্তু ঘোড়ায় চড়িস না। আমি এটা বারবার বলেছি। সেই ঘোড়ায় চড়েছে, ঘোড়ায় চড়ে উপরে উঠেছে, এই অবস্থা আজকে। তারপরে ওরা কবে গিয়েছিল? ওরা গিয়েছিল 16 তারিখ। ফেরা কথা 24 তারিখে রাত্রিবেলা। হ্যাঁ ফরিদা থেকে এসেছিল 8 কিংবা 9 তারিখে। আপনার সাথে শেষ কথা কখন হয়েছিল? এই তো ওর ওয়াইফের সাথে, মানে ওদের সাথে ওয়াইফের সাথে। এই যে এখান থেকে আমি তো পৌঁছে দিলাম, ওদের গাড়িতে উঠিয়ে দিলাম। কাশ্মীর পৌঁছানোর পর আজকে অনেকবার কথা হয়েছে, ড্রাইভারের সাথে কথা হয়েছে 2:30 নাগাদ। তারপর থেকে কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল। ঘটনাটা সম্পর্কে বিবরণ কি দিল ওরা? কি হয়েছিল ঘটনাটা? কিছুই না, নিউজে যেটা দেখাচ্ছে, আমি তো সব কিছু বলতে পারবো না। জেঠু বলে পাগল, জেঠু বলে জেঠুকে ছাড়তে চায় না। ওখানে গিয়ে বলছে জেঠু যাবো। ওইখানে ও বলছে ভালো লাগছে না, আমি জেঠু যাবো। আমাকে খবরটা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেন। আমি খবর পেয়েই আমাদের স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি প্রসেনজিৎ দাস নিয়ে আমরা চলে আসি, ওনার সঙ্গে কথা বলি। তারপরে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি। এখানে আমরা জানতাম নিজেও, পরে ওনার স্ত্রী মারা গেছে। পরবর্তীকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমাদের হোম ডিপার্টমেন্ট, আমাদের দিল্লি RC অফিস পুরোটাই করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তিনি নিজেই তদন্ত ফিরিয়ে নিয়ে আসার বডি এবং বাচ্চা এবং তার স্ত্রী। पहलगाम आतंकी हमले ने एक और परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। बहला के रहने वाले समीर गोहा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे। अब घर लौटी है तो सिर्फ उनकी यादें। परिजन सदमे में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है।
परिवार वालों ने कहा कि हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा अब कभी वापस घर नहीं लौटेगा। আমি ছোটবেলা থেকে আমি বলতে পারছি না, আমি তো মানে বুঝতেই পারছি না ঠিক কি করে হলো। ওর ওয়াইফকে ফোন করলে ও বললো যে মামা এরকম ব্যাপার হয়েছে, ওকে গুলি করে দিয়েছে এরকম। আর ওরা দেখে দেখে লিস্ট বের করে নাকি বলছে যে কে হিন্দু, আবার অনেকে প্যান্ট খুলে এরকম পরীক্ষা করে দিচ্ছে হবে। এইভাবে ওকে চলে দিয়ে গেল 3 বছরের একটা বাচ্চা। আমি কি বলবো, এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে আজকে কেন্দ্রীয় সরকার বলুন যে তারা কি করছে, নিরাপত্তা দিতে পারছে না আমাদের দেশে। वहीं झालदा के मनीष रंजन मिश्रा भी इस हमले में मारे गए। वे गृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया विभाग में अधिकारी थे और हैदराबाद में तैनात थे। परिवार से मिलने आए थे और अब उनका शव ही घर लौटेगा। मनीष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने कहा बड़ा बेटा जिम्मेदार था और अब सिर्फ उनकी यादें ही हमारे पास बची है। उनके छोटे भाई ने बताया कि वे माता वैष्णो देवी के दर्शन को निकलने वाले थे, लेकिन रास्ते में ये खबर मिली जिसके बाद वो वापस घर लौट आए। ঘটনাটা ওরা গিয়েছিল আপনার কাশ্মীর ঘুরতে, ফ্যামিলি ট্যুর ছিল ওদের। আর এখান থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে মাস্টার মশাই পুরো ফুল ফ্যামিলি ওখানে যাবে, বৈষ্ণো দেবী দর্শন করবে। জাস্ট ফ্যামিলি কালকে বেরিয়েছিল, কিন্তু যখন ঘটনার খবর পেয়ে তখন ফ্যামিলি রিটার্ন ব্যাক এসেছে। আবার ওরাও ওখান থেকে বৈষ্ণো দেবী আসার গল্প ছিল। কিন্তু এইভাবে যে ঘটনা, দুর্ভাগ্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে এখানে, ফ্যামিলি আহত হয়নি, আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে। আমার দেখা যায় যে আগামী এবার কি হচ্ছে, আমরা অপেক্ষা করছি যে ওনার পার্থ শরীর মানে এখানে পৌঁছাবে, তারপর আমাদের যা ফ্যামিলি পুরনি সেটা করা করবে ওরা। पहलगाम में हुए इस हमले ने सिर्फ जान ही नहीं ली बल्कि कई जिंदगियों को भीतर तक तोड़ भी गया। हुगली के चंचल डे अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां गए थे। हमले के बाद उनका छोटा बेटा ट्रॉमा से गुजर रहा है और हालात ऐसे हैं कि वो अब तक कुछ नहीं बोल पाया है। ये हमला पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है, जिसमें एक बार फिर हमारे ही लोग निशाना बने हैं, सिर्फ इसलिए कि वे पर्यटक थे, मुसाफिर थे और उस सरजमीन की खूबसूरती में कुछ पल सुकून के ढूंढने निकले थे। अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और घायलों व मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा छोड़कर बुधवार सुबह भारत वापस लौट आए हैं। वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा को सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनका दर्द हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन अब वक्त आ गया है कि देश आतंकियों की सिर्फ निंदा ही ना करे बल्कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे, वरना हर मुसाफिर डरते डरते सफर करेगा और स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर कभी फिर से चैन की सांस नहीं ले पाएगा। शांति के नाम पर खून की सियासत बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब भारत और नहीं सहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ 24 के साथ।